Hello, dear students. Welcome to Wings of Fire Academy, a place for free education. My name is Grace, and today we are going to study Class 5th English Bal Bharati, Unit number 4, Lesson number 30. Be a netizen. Learn in English with Hindi language. So, let's start for today's lecture. Be a Netizen is an informative lesson about how computers, with its amazing features, have brought about changes in the way we do things. First of all, we are going to read the passage. Be a netizen. Have you seen or used a computer? Computers have brought about many changes in the way we do things. One of the most amazing features of the computer world is the internet or the net. A network is a system of tubes, wires, roads, etc., which are all connected to each other. The internet or the net is a network of computers. It links thousands of computers or smaller networks of computers with one another. It is so large that millions of people around the world can use it at the same time. The internet makes it possible for computer users to get or send information very quickly. All you have to do is to log on, that is, give instruction to your computer to start using the internet. Okay, let's see the first line. Have you seen or used a computer? क्या आपने कंप्यूटर देखा या इस्तेमाल किया है? Computers have brought about many changes in the way we do things. अभी कंप्यूटर में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं, लाए गए हैं. One of the most amazing features of the computer world is the internet or the net. और इसमें सबसे आश्चर्यजनक विशेषताओं में से एक है इंटरनेट और नेट. A network is a system of tubes, wires, rods, etc. which are all connected to each other. Now network क्या है? नेटवर्क सिस्टम क्या है? सो एक नेटवर्क ट्यूब, तारों या सड़कों आदि की एक प्रणाली होती है जो सभी एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं. सो डेफिनेशन क्या है? द इंटरनेट और द नेट इज अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स. ओके, सो इंटरनेट क्या है? द इंटरनेट और द नेट इज नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स. It links thousands of computers or smaller networks of computers with one another. So इंटरनेट या नेट कंप्यूटर का एक नेटवर्क होता है. यह हजारों कंप्यूटर या छोटे नेटवर्क से लिंक करता है. It is so large that millions of people around the world can use it at the same time. और हजारों कंप्यूटर्स या छोटे नेटवर्क को ये लिंक करता है एक दूसरे के साथ में. यह इतना बड़ा है कि दुनिया भर में लाखों लोग इसका उपयोग कर सकते हैं एक ही समय में. द इंटरनेट मेक्स इट पॉसिबल फॉर कंप्यूटर यूजर्स टू गेट और सेंड इंफॉर्मेशन वेरी क्विकली. सो इंटरनेट कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं को बहुत ही तेजी से जानकारी प्राप्त करने या भेजने के लिए संभव बनाता है. All you have to do is log on. All you have to do is to log on, that is, give instruction to your computer to start using the internet. और इसके लिए क्या करना होता है? बस आपको log on करना होता है. Now log on means what? यानी कि आपके कंप्यूटर को शुरू करने के लिए, इंटरनेट उपयोग करने के लिए उसको इंस्ट्रक्शन देना, उसको संकेत देना होता है. Then you may see on the net all the information you need. तब लॉग ऑन करने के बाद में आप नेट पर कोई भी इंफॉर्मेशन, जानकारी आप देख सकते हैं. द इंफॉर्मेशन में बी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, पिक्चर्स, मूविंग इमेजेस और इवन साउंड, स्पीचेस और म्यूजिक. सो आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको टेक्स्ट चाहिए, पिक्चर्स चाहिए या मूविंग इमेजेस, साउंड, स्पीचेस, म्यूजिक, कोई भी इंफॉर्मेशन आप वहाँ से ले सकते हैं. यू कैन ऑल्सो सेंड योर ओन इंफॉर्मेशन ऑन दी नेट. आपकी खुद की जानकारी भी, आपकी इंफॉर्मेशन आप नेट पे भेज सकते हैं. वंस यू हैव गैदर्ड और गिवन द इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट, यू कैन लॉग ऑफ, दैट इज गिव इंस्ट्रक्शन टू योर कंप्यूटर टू गेट डिसकनेक्टेड फ्रॉम दी
नेट। एक बार आपका काम होने के बाद में आपको जो भी जानकारी चाहिए या जो भी जानकारी आपको भेजनी है, उसके बाद में वो काम होने के बाद में आप लॉग ऑफ कर सकते हैं। लॉग ऑफ करना मीन्स इंस्ट्रक्शन देना कंप्यूटर को कि वो अब नेट को डिस्कनेक्ट करे। द इंटरनेट इज लाइक एन ओशन ऑफ इंफॉर्मेशन। नाउ ओशन ऑफ इंफॉर्मेशन मीन्स जानकारी का महासागर। इंटरनेट क्या है? लाइक एन ocean of information. You may wonder how one can find tiny bits of information in this ocean, but it is not at all difficult. So छोटी छोटी जानकारी भी आप वहाँ से ले सकते हो उस महासागर से, और ये कुछ भी डिफिकल्ट काम नहीं होगा। The information on the net is stored and made available in a systematic way on वेबसाइट। सो जो भी जानकारी आपको चाहिए वो संग्रहित की जाती है, स्टोर की जाती है वेबसाइट्स पर। नाउ वेबसाइट्स आर प्लेसेस ऑन दी नेट, और इंटरनेट पे, नेट पर वेबसाइट ये एक जगह होती है, प्लेस होती है। ईच वेबसाइट हैड इट्स ओन एड्रेस, और हर वेबसाइट का अपना एक एड्रेस होता है। यूजिंग दिस एड्रेस you can visit a website, that is you can read or view the information stored on it. Okay, the thousands of websites on the net together form a worldwide web, www. So website पर जहाँ पर information stored है, right, so वहाँ का एड्रेस होता है लाइक जैसे कि हम इंटरनेट पे डालते हैं www डॉट कोई भी .com, राइट। सो वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन अगर हमें चाहिए तो हम वहाँ का एड्रेस डाल के उस वेबसाइट को हम ओपन करते हैं और वहाँ से जानकारी लेते हैं। और हजारों वेबसाइट मिलकर www इट मीन्स वर्ल्ड वाइड वेब बनता है। There are special computer programs known as search engines which help you to find the different website on the world wide web. ओके, कंप्यूटर के कुछ विशेष कार्यक्रम होते हैं, सर्च इंजन होता है, राइट। सो उसमें आप विभिन्न वेबसाइट्स को खोज सकते हैं। इफ यू टाइप द वर्ड or subject on which you want information, the search engine shows on your screen a list of websites that you have the information. अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, राइट, तो उसके जो लेटर्स है, वर्ड है, या वो जो भी सब्जेक्ट है, अगर आप वहाँ पे टाइप करते हैं तो अलग अलग वेबसाइट्स वहाँ पे ओपन होते हैं। सो आप उस पर अगर क्लिक करते हैं तो वो इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। यू कैन देन गो टू दैट वेबसाइट, फिर आप उस वेबसाइट पे क्लिक करके वहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। लुकिंग एट द वेरियस वेबसाइट्स इज नोन एज ब्राउजिंग और सर्फिंग दी नेट। सो हमें जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जब हम वहाँ पर सर्च इंजन में सर्च करते हैं, सो उस इंफॉर्मेशन को लेना या ढूंढना, राइट, उसे यूज करना, इसे ही ब्राउजिंग या सर्फिंग द नेट कहा जाता है। अ वेबसाइट इज लाइक अ बुक or magazine, but you cannot make changes in a book once it is printed. It is possible to change the text or pictures on a website as many times as you like. So makers of website can update a website. Now website is like a book or magazine. website एक book या magazine के जैसे होती है, सिर्फ उसमें डिफरेंस यही है कि बुक एक बार प्रिंट होने के बाद में, राइट, उसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते, लेकिन वेबसाइट का ऐसा नहीं है। वेबसाइट को हम अपडेट कर सकते हैं, कंटिन्यूस उसकी इंफॉर्मेशन हम अपडेट कर सकते हैं। While your computer is connected to the internet, you are online. जब तक आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट हुआ होता है, तो उसे हम कहते हैं हम ऑनलाइन हैं। You can do many things online like reading, watching a movie, listening to songs, or even chatting or playing computer games with other people who are online in any part of the world at that time. Okay? अगर आप ऑनलाइन है, राइट, सो उस टाइमिंग में आप रीडिंग कर सकते हैं, मूवी देख सकते हैं ऑनलाइन, देन म्यूज़िक सुन सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं ऑनलाइन, और जितने भी वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं, एक ही टाइम में हम उनके साथ में भी गेम खेल सकते हैं। वेन यू आर नॉट कनेक्टेड टू द नेट, यू आर ऑफलाइन। जब हम नेट से कनेक्टेड नहीं होते, जुड़े नहीं होते, तब कहा जाता है कि हम ऑफलाइन हैं।
Sometimes you gather a lot of information on the net which you want to read or use later. कभी कभी आप इंफॉर्मेशन जानकारी इकट्ठा करते हैं, राइट? सो उस वक्त आप पढ़ना नहीं चाहते, आप उस बाद में पढ़ना चाहते. व्हाट डू यू डू देन? तब आप क्या करते हैं? यू कैन मेक अ कॉपी ऑफ द टेक्स्ट और पिक्चर्स और मूवीज ऑन योर कंप्यूटर एंड स्टोर इट देयर. तो आप क्या करते हैं? उसकी कॉपी कर लेते हैं, राइट? अपने कंप्यूटर पे उसकी कॉपी कर लेते हैं, ताकि अगर वो पिक्चर है या टेक्स्ट है या कोई मूवी है, राइट, ताकि आप उसे बाद में देख सकें. इन अदर वर्ड्स, यू डाउनलोड द इंफॉर्मेशन ऑन योर कंप्यूटर एंड देन यूज इट एनी टाइम यू लाइक. इसका क्या मतलब होता है कि उसे ही कहा जाता है डाउनलोड करना, ठीक है, ताकि जब भी आपको टाइम मिले उस टाइम में आप उसे देख सकें. To send information on the net, you first need to get it ready on your computer in the way you want it on the net. अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन सेंड करनी है तो पहले आपको उसे अपने कंप्यूटर में रेडी करना होता है ताकि आप उसे भेज सके. यू नीड अ वेबसाइट टू डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन ऑन दी नेट. तो आपके पास में एक वेबसाइट होना चाहिए ताकि आपकी इंफॉर्मेशन को आप प्रदर्शित कर सके. यू कैन ऑल्सो गेट योर ओन पर्सनल एड्रेस ऑन दी नेट. आप आपका पर्सनल एड्रेस जो नेट पर पर्सनल एड्रेस होता है वो भी आप ले सकते हैं. यू कैन रिसीव मैसेजेस ऑन दिस एड्रेस एंड ऑल्सो सेंड देम. और वो अगर दूसरों को आपको मैसेज करना है सो उस एड्रेस पे वो आ सकते हैं वो मैसेजेस, और आप भी उसी एड्रेस से मैसेज भेज सकते हैं. दिस सिस्टम ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस or mail on computers is known as email और electronic mail. So ये information या कोई भी मैसेज भेजना या प्राप्त करना इसे ही मेल कहा जाता है, राइट? मेल, ईमेल और इलेक्ट्रॉनिक मेल. An email address is short and unique. जो ईमेल एड्रेस होता है वो शॉर्ट और यूनिक होता है. नो टू ईमेल एड्रेसेस आर दी सेम. कभी भी दो ईमेल एड्रेस सेम नहीं होते, एक समान नहीं होते. विद द एड्रेस यू गेट एन अकाउंट ऑन दी नेट. सो उस एड्रेस के साथ में हम अपना अकाउंट वहाँ पे बनाते हैं. योर अकाउंट इज लाइक योर ओन लेटर बॉक्स ऑन दी नेट. सो ये जो अकाउंट आप बनाते हो सो लाइक इट इज़ लाइक अ लेटर बॉक्स. सो वो आपके पत्र बॉक्स के जैसे ही होता है. द ओनली डिफरेंस इज दैट यू कैन यूज दिस लेटर बॉक्स नॉट ओनली फॉर रिसीविंग मेल बट ऑल्सो फॉर सेंडिंग इट. सो इट्स लाइक अ लेटर बॉक्स. सो एक लेटर बॉक्स के जैसे है. सो वहाँ पे आप अपने मैसेजेस दूसरों को भेज भी सकते हैं और मैसेजेस रिसीव भी करते हैं. वेन यू ग्रो अप यू कैन गेट योर ओन ईमेल अकाउंट. जब आप बड़े हो जाएंगे तो आप भी अपना ईमेल अकाउंट बना सकते हो. यू कैन लॉक दिस लेटर बॉक्स बाय यूजिंग अ पासवर्ड. सो इस लेटर बॉक्स को कैसे लॉक किया जाता है? पासवर्ड के जरिए. अ पासवर्ड इज अ सीक्रेट वर्ड और ग्रुप ऑफ लेटर्स एंड और नंबर्स. द कंप्यूटर विल अलाउ अ पर्सन टू यूज और सी द अकाउंट ओनली व्हेन द पर्सन टाइप्स द करेक्ट पासवर्ड. ओके. सो इस अकाउंट के लिए जो भी आपका अकाउंट है, राइट, सो उसे सीक्रेट रखने के लिए, राइट, महफूज रखने के लिए आपको उस पर पासवर्ड लगाना होता है. सो पासवर्ड किससे बनता है? कुछ वर्ड से या ग्रुप ऑफ लेटर्स से और नंबर से पासवर्ड बनता है. सो जब आप सही पासवर्ड डालेंगे तभी कंप्यूटर आपको अलाउ करेगा कि आप जो है इंफॉर्मेशन देख सके. पीपल हु लीव इन अ सिटी आर सिटीजन्स. शहर में रहने वाले जो लोग होते हैं उन्हें कहा जाता है नागरिक, सिटीजन्स. पीपल हु यूज द नेट आर नेटिजन. और जो लोग नेट यूज करते हैं उन्हें कहा जाता है नेटिजन. वुड यू लाइक टू बी अ नेटिजन? क्या आप नेटिजन बनना चाहोगे? लेट्स सी द हार्ड वर्ड मीनिंग्स. फर्स्ट, amazing, it means causing surprise or wonder. Second, features, it means qualities or characteristic. Next is log on, it means to go through the steps to begin the use of computers. Next word, text, it means printed words.
Next word is disconnected. It means break the connection or link. Sixth word is browsing. It means to casually look through data in the internet. Next word is surfing. It means to move from one site to another, searching various topics on the internet. Next word is update. It means to change by including most recent technology. Next word is online. It means being connected to a network of computer. Offline. It means not controlled or connected to computer or internet. Next word is chatting. It means exchange messages through computer with one or many users. Next word is download. It means to copy data from one computer system to another over the internet. 13 number word, address. It means the internet address is used for sending and receiving mails. Next word is email. It means electronic mail. Next word, unique. It means extraordinary. 16th word is password. It means a secret word or group of letters and or numbers that provides access to our email account. Next word is citizen. It means people who live in a city. Netizen. It means people who use the net. And last word is program. It means systematic instructions given to computer for desired results. So today we learned our 30th number lesson, be a netizen. I hope you all understood this lesson. क्वेश्चन आंसर्स के लिए आप चैनल प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं. इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है. अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. Press the bell icon so you'll get the notification of the new video. This is all for today's lecture. Thank you.